for the sustenance of this series, respected Padma Bhushan by the Sri Devendra Tribhunaji, President, Governing Body RAB, respected by the Sri Rajesh Kotecha Sir, Secretary, Ministry of Ayush, respected Dr. Vandana Siroha Ma'am, Director RAB. Now, let us begin the session with the blessings of Lord Dhanvantri. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantaraye Amrita Kalashahastaya Sarvamaya Vinashanaya Trailokyanataya Shri Mahavishnave Namaha. Now, I would like to introduce today's speaker, Dr. Dhanraj Bhaukar sir, who is going to share his views on Basti Karma and implications of various types of Basti. Dr. Dhanraj sir has completed his BAMS in the year 1983 and also completed his Masters or MD in both Rasashastra and Panchakarma, respectively. He is currently the Managing Director of various institutions like Samadhan Ayurved Panchakarma Hospital and Research Center, Nagpur, Medayu Multi-Speciality Hospital, both in Shankarpur, Nagpur, as well as Bhopal. He has also been the CRAV Guru and part of Rashtra Ayurveda Vidyapeeth. He has been the ex-associate professor, Department of Panchakarma, Jupiter Ayurveda Medical College and Hospital, Nagpur. He has a lot of accolades to his name, be it presentations and sessions in abroad Germany with various institutions or presenting in national and international papers. He has so many awards in his honor. To just name a few, recently in 2024, Luminary in Ayurveda Certificate of Appreciation was awarded to him by the Central Council for Research in Ayurvedic Sciences, Ministry of Ayush, India. He has received various other awards like Ayurveda Maharshi Award, Ayurveda Bhushan Award, Healthcare Excellence Award, Dr. Dwarkanath Kotnis Health International Award, Best Educationalist Award, International Healthcare Excellence Award, Lifetime Achievement Gold Medal Award from the International Institute of Education and Management, Delhi in 2006, and many more. So this is a brief introduction to the vast knowledge and the expertise Sir has in this field. And we are very glad to have Sir with us today to share his knowledge and experience. With these few words, I humbly welcome you, Sir, for today's session. Thank you, madam. धन्वंतरे नमः। आदरणीय पद्मश्री पद्मभूषण वैद्य देवेंद्र त्रिगुणाजी, आदरणीय पद्मश्री वैद्य कोटेच, आदरणीय मैम वंदना सिरोहा, डायरेक्टर आरएबी एवं राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के सभी गण तथा आरएबी के सभी गुरुजन एवं शिष्य, मेरा सभी को प्रणाम। प्रथम मैं आरएबी के डायरेक्टर या उनकी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे आज अवसर दिया मेरा प्रेजेंटेशन आपके सामने प्रस्तुत करने का। नेक्स्ट। आज समय की पाबंदी है और मुझे कम से कम समय में मैक्सिमम स्लाइड्स पूरी करना है। कोशिश करता हूँ, मैडम ने मुझे जो समय दिया उस समय में ही मैं ये कंप्लीट करूं। धन्यवाद। टुडे Basti Karma and implication of various Bastis.
निरुक्ति मैंने इसलिए बस्ती का मुझे कुछ आपको पढ़ाना नहीं है या बहुत ज्यादा सिखाना नहीं है, बहुत ही फ्यू वर्ड्स में मुझे कुछ बताना है आपको, इसलिए मैंने ये कुछ लिख के रखा है। ये मेरा आज का प्रेजेंटेशन है, वो प्रेजेंटेशन गुरुजनों से ज्यादा मेरे स्टूडेंट को है या शिष्य के लिए है, जो पंचकर्म की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं या जो कर रहे हैं। इन लोगों के लिए जो बेसिक पंचकर्मा बस्ती कर्मा जो ओपीडी लेवल पर होती है, उसकी संकल्पना, उसके डोजेस, उसके कंटेंट्स और उसके प्रिपरेशंस और किस व्याधियों में किस प्रकार के बस्ती देना है, इसके बारे में मैं कहने जा रहा हूं। तो आप चाहता हूं कि आप शांति से सुने। यहाँ पे निवृत्ति बस्ती की जो लिखा है, वस निवास है, वास करना। दूसरा शब्द है आच्छादित करना या आवरण करना। मतलब बस्ती द्रव्य जो है, वो बस्ती द्रव्य को कोई भी या तो ब्लैडर से या प्लास्टिक से या एनिमा पॉट्स या किसी कारण से यदि आवरण करना है, ये शब्द प्रयोग हमें आगे काम आएगा, इसलिए मैंने ये रेड कलर में करके रखा। दूसरा है बस्ती क्या है, बुध मार्ग से, मूत्र मार्ग से एवं योनि मार्ग से औषधि सिद्ध विभिन्न क्वाथ, स्नेह, क्षीर, मांसरस आदि द्रव्य को बस्ती के द्वारा प्राणी की मूत्र से आयदा प्लास्टिक्स और पक्वाशय में प्रविष्ट किया जाता है, उसे हम बस्ती कहते हैं। और ये बस्ती द्रव्य नाभि प्रदेश, कटी, पार्श्व एवं कुक्षी मतलब उदर प्रदेश में जाकर संचित मतलब दोषों साथ ले आकर वहां पर आलोडित कर, विलयित कर, विच्छिन्नित कर शरीर का स्नेहन करते हुए पुरुष और दोषों के साथ सुखपूर्वक उदर से बाहर निकाल दिया जाता है, उसे बस्ती कहते हैं। पंचकर्म का जो मूल सिद्धांत है, लंघन, स्नेहन, स्वेदन, वृक्ष स्तमन, आप सभी को पता है। लेकिन हमारा जो समग्र विचार है, दुनिया में जो समग्र चिकित्सा है, विश्व में पूरी चिकित्सा है, वो पूरी चिकित्सा षड्विध उपक्रम में सम्मिलित हो जाती है। उसी के साथ में जो अष्टांग हृदय में जो संतर्पण चिकित्सा बताई हुई है, वो संतर्पण और अपतर्पण चिकित्सा में पूर्ण समाहित होती है। तो जैसे हम हमारे यहाँ जो हमें कहते हैं कि बस्ती ये संपूर्ण चिकित्सा की आधी चिकित्सा है, और ये आधी चिकित्सा होने के कारण हमें याद रखना होगा कि ये सर्वांग रूप से कार्य करती है। जैसे ब्रूहन, शमन और शोधन तीनों रूप से काम करती है। तो ये इसीलिए वात प्रधान या वात कफ प्रधान या वात पित्त प्रधान या मलावृत्त वात, मूत्रावृत्त वात या रस रक्तादि धातुओं का ब्रूहण, मतलब दोषों पर, धातुओं पर और मलों पर कार्य करने वाली चिकित्सा ये बस्ती चिकित्सा है। इसलिए ये चिकित्सा अर्ध चिकित्सा हम कह सकते हैं। इसमें हमें याद रखना है कि कौन से सिद्धांत हमें लागू पड़ेंगे। इसमें कोष्ठ शाखा गति और शाखा कोष्ठ गति ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पक्वाशय में गई हुई बस्ती, पक्वाशय में जो बस्ती गई हुई है, वहां पे शोषण होकर, वो शोषण होकर कोष्ठ से शाखा में चली जाती है। मतलब आंत्र से शाखा मतलब सेल्स पे चली जाती है, पूरे संपूर्ण शरीर के सेल्स पे चली जाती है, और वहां से दोष को विच्छिन्नित, विलयित कर, आलोडित कर वो फिर से कोष्ठ में लाए जाते हैं। तो ये पंचकर्म का मूल सिद्धांत इसमें लागू पड़ता है। आप ये सिद्धांतों को और अच्छे से पढ़िएगा। मैं सिर्फ आपको संक्षिप्त में बताया है कि ये सिद्धांत आपको लागू। एक दूसरा सिद्धांत यह सिद्धांत नहीं है कि हमें यदि बस्ती यदि देना है कोई भी रुग्ण को, तो उसके पहले हमें सर आप म्यूट हो गए, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, वो ऑटोमेटिकली शट हो गया।
ऑडियो अनम्यूट करें। हेलो मैडम, अभी सुनाई दे रहा है सर। कौन सी स्लाइड चल रही थी? सर ये इस 2 स्लाइड पहले सर। नहीं तो हाँ ये हाँ बस ठीक। हाँ। अभी आवाज आ रही है मैडम? हाँ अभी आ रही है सर आवाज। ओके। तो पंचकर्म मूल सिद्धांत बहुत अधिक है, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट सिद्धांत है कि जो कोष्ठ शाखा गति और एक शाखा कोष्ठ गति, मतलब जो भी पक्वाशय में दिया हुआ औषधि द्रव्य पूरे शरीर में फैल जाते हैं, मतलब सेलुलर लेवल में फैल जाते हैं, जिसको हम शाखा कह सकते हैं, और फिर से वहां से दोष विच्छेदित होकर विलयित होकर फिर पक्वाशय में आते हैं, और पक्वाशय से आने के बाद वो उदक के द्वारा निरेरित होते हैं। तो ये है कोष्ठ से शाखा गति और शाखा से कोष्ठ गति। परीक्षा भाव जो परीक्षण करना है हमें, वो परीक्षण अष्टवी दशवी सब कुछ तो करना ही करना है, लेकिन बस्ती अध्याय में एक स्पेसिफिक लिखा हुआ है परीक्षा भाव। तो ये परीक्षा भाव का जो परीक्षण है वो हमें इसलिए करना है कि रोगों की प्रकृति, उसमें दोष, औषधि, देश, काल, स्वात्म, अग्नि, सत्व, वो, वय तथा बल, इस सभी का विचार कर हजारों बस्ती में से कौन सी बस्ती हमें प्रिस्क्राइब करना है, रुग्ण को देना है, वो हमें देखने के लिए ये परीक्षा भाव का स्टडी करना चाहिए। और वो परीक्षा भाव जो दशविध परीक्षा लिखी हुई है और एकादश विध परीक्षा लिखी हुई है, उसी में सम्मिलित हुई है। अभी आपको मैंने जो कहा था कि बस्ती यंत्र और बस्ती पूटक, जैसे बस्ती यंत्र में 2 चीज, तो बस्ती नेत्र कि एक बस्ती यंत्र जो है जो ट्रेडिशनल है, जो सप्त धातु से निर्मित है, दूसरा जो है बीच में जो फ्लैटस ट्यूब है, तीसरा जो है कैथेटर। अब ये देने का उद्देश्य क्या है? अभी तक मैंने हेलो मैडम, नमस्ते सर। वो कर दिया था, डिस्कनेक्ट कर दिया। हाँ ये स्लाइड से सर चला गया था, डिस्कनेक्ट। हाँ हाँ आप कंटिन्यू कर सकते ओके। हाँ मैडम, तो बस्ती यंत्र जो देख है वो सप्त निर्मित धातु से बना हुआ है, दूसरा जो है फ्लैटस ट्यूब है, और तीसरा है कैथेटर। अभी तक मैंने जो भी प्रेजेंटेशन सुना है बस्ती के बारे में, वो अक्सर जो कंपैरिजन होती है वो बस्ती नेत्र से होती है जो सप्त निर्मित है, और कैथेटर से होती है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि कैथेटर में यहाँ पे अग्र छिद्र है, अग्र छिद्र नहीं है, पार्श्व छिद्र है, और ये पार्श्व छिद्र ये दोष है। तो फ्लैटस ट्यूब जो है उसमें आगे अग्र छिद्र है, और जो धातु निर्मित नेत्र से जितने चाहते हो, मतलब छोटे बच्चों से लेकर 80 वर्ष के आयु के लिए वो फ्लैटस ट्यूब उपलब्ध है। तो इसलिए यदि बस्ती यंत्र में हमें फ्लैटस ट्यूब का यदि उपयोग करते हैं, तो वो बस्ती नेत्र ही जैसे होगा। प्रश्न यह होता है कि औषधि द्रव्य, बस्ती औषधि द्रव्य जो हमें
अंतर प्रविष्ट करना है वो कितने मिनट में जाता है, कितना समय में जाता है और कितनी मात्रा में जाता है, वो डिपेंड करता है। तो यदि आप बस्ती यंत्र के साथ में न उपयोग करते हुए या करते हुए फ्लैटर ट्यूब का प्रयोग करते हैं तो वो करीब करीब 30 to 45 सेकंड में 1 लीटर का बस सर आपका ऑडियो म्यूट हो गया अभी। कोणीतरी करत असेल आपल्याकडून हेलो मैडम, अभी सुनाई दे रहा सर, कंटिन्यू कीजिए। फिर मैडम ऐसा क्यों होता है हर बार? मैं कुछ तो नहीं कर रहा हूँ। हाँ वही सर, पता नहीं है वो क्या अपने आप हो रहा है। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ आईटी टीम से। आप कंटिन्यू। वहां से तो नहीं, किसी ने बीच पे रिमूव कर दिया था, किसी ने कुछ? नहीं 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 सर। ठीक है मैडम, ओके। नाउ अभी आज का जो सब्जेक्ट है, जो वेरियस बस्ती है, जो हमें उसका केस स्टडीज देखना है, वो पहला बस्ती है। ये स्पेसिफिक शिष्यों के लिए है कि बस्ती देने के बाद वो बस्ती का स्टडी किस तरह से करे और उसके डोजेस क्या रखे, वो स्टडी मैंने दिया हुआ है। एरण्यमुलादि नीरोबस्ती इन गृद्रसी वातकफत लक्षण है कटी पादशूला शूल रेफर फ्रॉम कटी स्पीक गुरु जंगा जानू पिंडली और अंगुली स्तब्धता स्फुरता स्फुरन, ये सारे लक्षण आपको गुरुदृष्टि के मिलेंगे। जो चलने में वक्रता होती है और एक विशेष लक्षण होते हैं तंद्रा, गौरव और रुचि और विबंधा। ये हमारा हमने देखा है, ये हमारा में L4 L5 इंटरवर्टिब्रल डिस्क हर्निएशन है और उसके कारण कॉम्प्लिकेशन है। एरंडमुलादि नीरोबस्ती जो हम चिकित्सा करते हैं उसका पूर्व कर्म है रुक्षण। रुक्षण बहुत आवश्यक है और जो किया जाता है दीपन पाचन के लिए त्रिकटु चूर्ण 3 ग्राम सुबह शाम 1 या 3 दिन तक देना होता है। जब तक रुक्षण नहीं होता तब तक हम बस्ती नहीं दे सकते। अनुपात कोष्ठजल है। आहार लघु सुपाचक रुशिरा। 22 दिन में अभ्यंग धन्वंतरम तेल से स्वेदन नाट 25 मिनट। अनुवासन बस्ती निमोप्सिया सौचरादि तेल मात्रा 150 ml रुशिरा या आफ्टर मील। Disturbance. Any disturbance from my phone? 8:30 बस्ती धारण काल 315 hours। सर कंटिन्यू कीजिए सर। रुग्ण निरीक्षण मल संवेदना आफ्टर 3 hours। मल वेगा सहस्नेहा वेगा 2। सम्य परीक्षण टेम्परेचर 97.6 पल्स 84 लाइक दैट। ओके नेक्स्ट। प्रधान कर्म निमो बस्ती एरंडमुलादि बस्ती बस्ती मात्रा बिफोर में बस्ती दान काल 840 बस्ती द्रव्य प्रविष्ट काल 45 सेकंड बस्ती धारण काल 7 मिनट। रुग्ण निरीक्षण उदरात्मा मल संवेदना एंड मलवेगा। उत्सर्जित द्रव्य परीक्षण स्वरूप गाढ़ द्रव मल प्रवृत्ति वर्ण कृष्ण पिताभ मल प्रवृत्ति वेगा टोटल 4 वेग मात्रा 3 प्रभुत वेगा एंड 1 अल्प मात्रा वेग। गंध विसर्गंध मल जल सांद्रता परीक्षण निरामल पोटासॉन वाटर। बस्ती लक्षण तालिका यदि योग बस्ती हम देना चाहते हैं उसके लिए हमें लक्षण तालिका देखना होगा कि सम्यक अयोग और अतियोग। उसमें सम्यक है और इस सम्यक सारे लक्षण में आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट फिर योग बस्ती तालिका है, इसमें हम देखते हैं कि नेम ऑफ बस्ती अनुवासन फिर एरंड फिर अनुवासन एरंड निर्वाह फिर इस प्रकार से योग बस्ती जिस प्रमाण डिसाइड करते हैं इस प्रकार से एक चार्ट और इसमें धारण काल है
प्रविष्ट काल है और प्रणिधान काल। नेक्स्ट, नंबर ऑफ वेगास, वर्णयात गंध, सम्यक बस्ती लक्षण। नेक्स्ट, अब ये सांबार संग्रह एरंडमुलादि निरोबस्ती, सैंधव, मधु, मूर्छित तेल, कलका द्रव्य जो लिखा हुआ है, मदम फल एंड क्वाथा द्रव्य जो लिखे हुए, और टोटल मात्रा है 750 ml। सांबार संग्रह। नेक्स्ट, प्रिपरेशन, क्वाथ निर्माण कैसे करते हैं? पहले जल के साथ में क्वाथा द्रव्य, क्वाथा द्रव्य का 1:16:4 के प्रमाण से क्वाथा द्रव्य निर्माण किया है। उसके बाद मधु और संदेव एक साथ लेकर उसका इमल्शन तैयार किया हुआ है। उसके बाद उसमें तेल डालते, फिर कलका डालते, फिर क्वाथा डाल देते, और ये बस्ती द्रव्य तैयार हुआ है। बस्ती द्रव्य जब चर्वण करते हैं, उसका इमल्सिफिकेशन घोल तैयार करते हैं, फिर उसको पोषण किया जाता है सहत्व, मतलब जितना पेशेंट को सहन हो सके उतना ही। उसके बाद पॉट में उसको रखा जाता है और वो उसमें से एयर निकालने के लिए प्रक्रिया पूरी हो जाती है, और उसके बाद रुकने पर उसका प्रयोग करते हैं। अभी पहले जो बताया है वो है शास्त्रोक्त निरोधक, और ये दूसरा जो है द्वितीय है प्रीमिक्स है। प्रीमिक्स की संकल्पना इस प्रकार की है कि इसमें हमने कषाय द्रव्य बना है। कषाय द्रव्य में वात द्रव्य, मदन फल, कलका द्रव्य, मधु और संजय, इसका इमल्शन तैयार करके रखा हुआ है। इसके बायोकेमिकल टेस्ट हो चुकी है और ये करीब करीब 6 मंथ की इतनी एक्सपायरी, 6 मंथ तक ये चल सकता है। और उसके बाद उसमें निर्माण करते समय हमें उष्ण जल, मतलब जितना चाहते हो, हमें सिर्फ ये कषाय द्रव्य डालना है। नेक्स्ट, उष्ण जल लेना है, उसमें कषाय द्रव्य डालना है, और तेल जो हमने अलग से रखा है वो उसमें डाल देना है। उसके बाद मिक्सर में उसको घुमाना। मिक्सर में सिर्फ 45 मिनट से ज्यादा नहीं करना है। ये 45 मिनट्स में घोल तैयार हो जाता है जैसे शास्त्रोक्त पद्धति से होता है, और ये प्रिपेयर हो गया है बस्ती के लिए। Administration of Erandamula Nirubasti, there is Abhyanga, then the Nadi Sweda, then Guda Abhyanga, Guda Abhyanga के बाद बस्ती नेत्र अभ्यंग। यहाँ पे ध्यान देना है, चार्टर्स टू या बस्ती नेत्र प्रविष्ट करते समय पैरेलल टू वर्टिबल कॉलम ये होना बहुत आवश्यक है। अदरवाइज जो बस्तीदाता व्यापद है वो बस्तीदाता व्यापद इसमें आ जाते हैं। तो आप देखिएगा कि पहले इंडेक्स फिंगर अंतर प्रविष्ट करके उसके साइड में बस्ती नेत्र रखे, और एक बार बस इंडेक्स फिंगर गुदे के अंतर जाने के बाद फिर धीरे धीरे बस्ती नेत्र धीरे धीरे अंतर प्रविष्ट करें। उसके बाद कैथेटर और नीमापॉट उसको जोड़ दीजिए। ये जो परीक्षण मैंने किया है, करीब करीब आज मैंने 1 लाख से ज्यादा बस्ती ये 40 साल में दिए हुए हैं। तो बस्ती पॉट जो तुम्हें रखना है वो ग्राउंड लेवल से इट शुड बी 7 फीट, मतलब 7 फीट के ऊंचाई पर यदि एनिमा पॉट रखते हैं तो 1 लीटर बस करीब 30 to 45 सेकंड में अंतर प्रविष्ट होता है। ये मेरा अनुभव है, तो यही हमने दिखा रहे हैं। उसके बाद ताड़न परीक्षा स्पीक प्रांत पर, फिर रुग्ण को तकिया लगाकर सुलाना है। उसके बाद रुग्ण को अपने हाथ को घिसने के लिए कहा है, और एक सहायक होता है उसको पैर घिसने के लिए कहते हैं। उसी के साथ में उस समय पैर थोड़ा सा ऊपर करें ताकि बस्ती द्रव्य त्वरित वापस ना आए, और अंगूठे को खींचे, थोड़ा अंगूठों को खींचे। तो ये सारे जो ये हम क्रिया करते हैं, ये क्रिया है कि त्वरित बस्ती द्रव्य वापिस ना आए उसके लिए ही करते हैं। अभी
अभी ये एरंडमुलादि हमने पूरी प्रात्यक्षिक देखा है। अभी है ये अनुवासन बस्ती। अनुवासन बस्ती उसके लिए स्नेह द्रव्य शतपुष्पा चूर्ण और सैंधव 150 ml का है। ये तैयार करने की प्रक्रिया जो है जो पुरानी है, जैसे स्नेह लिया, उसके बाद कल्क लिया हुआ है, सैंधव लिया हुआ है, उसका मिश्रण निर्माण तैयार किया हुआ है और उसके लिए पेशेंट को अनुवासन बस्ती देने के लिए, इसके लिए एनिमा पॉट यूज करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको सिरिंज से दे सकते हो, दे सकते हो, क्योंकि इसमें तेल होता है। तो तेल का इरिटेशन गुदा में या पक्वाशय में नहीं होता है। लेकिन निरो बस्ती द्रव्य धकेल नहीं सकते, उसको अपने आप नेचुरल सर वो म्यूट हो गया सर, वापस आप एक बार अनम्यूट करते हैं। ये कुछ तो इशू है सर, हमारे एंड से नहीं हो रहा है एक्चुअली, कहीं प्रेस हो रहा है, पता नहीं क्या है, दिखते हैं। अच्छा मैडम, अभी ठीक है सर, आप कंटिन्यू कीजिए। अभी अभी आ रहे हैं मैडम? हाँ सर। क्या बस्ती का 75वां है? ये अनुवासन बस्ती का 75वां, फिर से ताड़न करना है, फिर हाथ घिसना है। ये सारी प्रक्रिया जो है वो अनुवासन बस्ती अधिक समय तक रहे, इसके बाद रुग्ण को विश्रांति देना है। तो विश्रांति देने से ये अनुवासन बस्ती कम से कम 4 घंटे 5 घंटे ऐसे रहना चाहिए। तीसरा बस्ती है क्षीर बस्ती ऑस्टियोपोरोसिस। अभी ऑस्टियोपोरोसिस सबको पता है, उसके बारे में डिटेल जानकारी देना उचित भी नहीं है, सबको पता ही है। तो ऑस्टियोपोरोसिस पे हमें पंचतिक्त क्षीर बस्ती, इसमें अक्सर ये होता है कि कल्का द्रव्य होते हैं और कल्का द्रव्य से कषाय बनाया जाता है, उसमें गोदुग्ध डाला जाता है और पंचतिक्त घृत का प्रयोग करते हैं। क्वाथ निर्माण किया है, क्वाथ में उसके बाद उसमें दुग्ध डाला हुआ है, उसको छान लिया गया है और उसके बाद उसमें घृत डाला हुआ है। ये इमल्शन तैयार हुआ है, बस्ती द्रव्य तैयार हुए हैं और इसको ब्रोहन तरीके से ड्रिप मेथड से देना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो ये करीब करीब 60 to 90 ड्रॉप्स पर मिनट इस रेशियो से देते हैं। तो ये काफी समय तक अंदर प्रविष्ट ही रहता है, पक्वाशय में ही रहता है और अपना कार्य अच्छे से करता है। देन वेथरम बस्ती एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस सभी को पता है, जानबूझकर मैंने ऐसे सब्जेक्ट लिए हुए कि जो प्रैक्टिशनर उसका होएगा अपने प्रैक्टिस में करे। इम्प्लीमेंटेशन लिगामेंट्स ऑफ द स्पाइन, पूरे पृष्ठवंश स्पाइन का एक डिसीज है। कभी कभी ये इन्वॉल्व करते हैं बाकी जॉइंट भी, जैसे हिप जॉइंट भी इन्वॉल्व हो जाते हैं कभी कभी, कभी कभी नीचे के जॉइंट शुरू होते हैं। और आप देख रहे हो कि कभी कभी एक्यूट होता है और कभी ये क्रॉनिक होता है। क्रॉनिक बाम्बू शेप ले लेता है। इसमें बस्ती द्रव्य जो है वेतरन बस्ती 450 ml और सैन्यवादी बस्ती 120 ml। अभी वेतरन बस्ती 450 ml ये देते देते कभी 2 बार, कभी 3, कभी 4 ऐसे दे सकते हो। यदि रुक्षता कोई बस्ती आमवात या वातरक्त में देना है तो एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ये जब एक्यूट होता है तो इसकी चिकित्सा आमवात वत करना चाहिए, आमवात व्याधि के तरीके से करना है। और जब ये क्रॉनिक हो जाता है तो इसकी चिकित्सा वातरक्तवत करना है। ये दोनों व्याधियों में वेतरन बस्ती का अच्छा रोल है। और जब भी हमें लगता है कि शुष्कता आई है, रुक्षता बढ़ गई है, तो सैन्यवादी बस्ती 120 ml हम दे सकते हैं। इसमें एक ऐसा द्रव है कि जिसमें सैन्य गुड़ और अम्लीय का
इसको हम मिश्रण करके रख देते हैं, इमल्शन करके रख देते हैं, घोल करके रख देते हैं। फिर जब भी समय है तो मूत्र, वो जो घोल हमने तैयार किया अम्लिका, गुड़ और सैंधव का, उसके बाद स्नेहा, उसके बाद घर्षण, उसके बाद उसको उष्ण करना है और रेडी करना है पेशेंट को देने के लिए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस विथ रेडिकुलोपैथी, इसको हम विश्वाची कह सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा मुझे दूसरी स्लाइड दिखाना है। इसमें बहुत ज्यादा स्पाइनल कॉर्ड पे इतना प्रेशर आया हुआ है, रेडिकुलोपैथी है, लेकिन वो थोड़ी अलग है। नेक्स्ट, दशमूलादि मज्जाबस्ती इन सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस विथ माइलोपैथी विथ क्वाड्रुपेरियोसिस। ये बहुत भयानक डिसीज है, विश्व में इसके लिए कोई चिकित्सा है ही नहीं, ना ऑपरेशन कर सकते हैं ना कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कॉर्ड एडिमा होता है, कॉर्ड इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो इसके कारण दोनों हाथ, दोनों पैर और पॉवेल और रेक्टम, इसमें शैथिल्य आ सकता है, इसमें वीकनेस आ सकता है। और ऐसे पेशेंट में काफी दशमूलादि मज्जाबस्ती ये काफी अच्छे से सिद्ध हो पाई है। दशमूलादि मज्जाबस्ती 500 ml की देना है, 500 ml। अनुवासन बस्ती महामास तेल की 120 ml देना है। इसमें दशमूलादि क्वाथ है 240 ml, कलका द्रव्य एज प्रिस्क्राइब जहाँ लिखा हुआ है वो 30 ग्राम, 60 ml, और मुर्शिद तेल 60 ml, गुदक 120 ml, ऐसी टोटल 500 ml में मात्रा देना है। ये सबसे प्रश्न है कि मज्जा रस कैसे निकाला जाता है, मज्जा अस्थियों से कैसे निकाला जाता है। आप जो पहला डायग्राम देख रहे हो वो डायग्राम जो है वो मज्जा अस्थिया है, पूरी तरह से थाई से लेकर पूरी तरह से वो हमने ले आए हैं। फिर इसको पहली बार बॉईल किया हुआ है, और पहली बार बॉईल करने के बाद उसकी जो ऊपर की त्वचा और हेयर्स है उसको निकाला हुआ है। अब निकालने के बाद जो पहले फिगर है वो पहली फिगर, उसके बाद उसके टुकड़े करना है, पीसेस करना है। वो पीसेस जो होते हैं वो दूसरी फिगर जो लिखी हुई है वो है पीसेस की हुई। वो फिर से उबालते हैं, फिर से उबालने के बाद फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ मज्जा किस तरह से होता है वो भी दिखा रहे हैं। कि जो मज्जा जो नलका अस्थि होती है, बड़े अस्थियां होती है, वो अस्थि से हमें एक तो उसको तोड़कर जो निकाला जाता है, इस प्रकार से मज्जा निकाली जाती है। और यदि हमें मज्जा निकालना है तो उसके साथ में यदि तिल तेल यदि आप मिक्स करते हो तो ये इतनी हार्ड नहीं होती है, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा हार्ड होती है, कठिन होती है मज्जा। फिर मज्जा हम पानी में उबालना है, पानी में उबालने के बाद, बॉयल करने के बाद हमें मज्जा रस तैयार करना है। तो ये हमें दिखा रहे हैं वो मज्जा रस बन चुका है। नेक्स्ट, मज्जा रस में पहले हमने क्वाथ द्रव्य लिया है, क्वाथ द्रव्य के बाद कलका द्रव्य, कलका द्रव्य के बाद मांसरस, उसके बाद तैल, फिर घर्षण, उसके बाद बस्ती बन चुकी है दशमूलादि मज्जा बस्ती, जो हम रुग्ण को सप्ताह में 2 बार ऐसे 2 माह 3 माह के लिए देते हैं। अभी हमारे पास कुछ वीडियो है कि इस प्रकार की व्याधि हम ठीक कर सकते या नहीं सकते। तो ये वीडियो यदि आपसे परमिशन हम लेंगे कि ये वीडियो दिखाए, उसका समय है हमारे पास। हाँ सर, आप वीडियो दिखा दीजिए। दिखाए। PDX
ये वीडियो पेशेंट है जो निश्चेत अवस्था में आया था, दोनों पैर उनके बिल्कुल ही हिल नहीं रहे थे, कैथेटर लगा हुआ है और पेशेंट लेटा हुआ है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, ये आफ्टर 7 days का वीडियो है, जिसके लिए हमें लोग उनको चलाने के लिए लगे हुए थे। लास्ट एक लास्ट ही वीडियो दिखा देते हैं, समय बच जाएगा। यस सर। कैथेटर निकल चुका है, कैथेटर नहीं है, पेशेंट खुद होके खड़ा हुआ है। ये अपने पंचकर्मा की मां सर आप वापस म्यूट हो गए सर। सर आपका माइक म्यूट हो गया है। हाँ अभी 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 हो गया सर। क्या है? अभी ऑडिबल है सर। हाँ मैम, तो ऐसे रुकने के लिए ये एक आयुर्वेद पंचकर्म सबसे अधिक आधार है। मैं विद्यार्थियों को बताऊं चाहूंगा कि जो शिष्य अपने गुरु के साथ में है, वो ऐसे ही जो दुर्धर व्याधियां जो आयुर्वेद में ठीक होते हैं, ऐसे ही सारे गुरुजन हैं जिन्होंने अक्सर इसी प्रकार के जो दुर्धर व्याधियां है वो व्याधियां वो ठीक कर रहे हैं। तो आप 1 साल में बहुत पाओगे। माउंसरस बस्तीन कार्शियतया मस्कुलर एट्रोफी, ताजा माउंस 120 ग्राम, वाटर 960 ml, एसेंजर 2 ग्राम, ऐसे 240 ml का। मांस कार्शियता में यदि मांस धातु कमी हो, जिनको वजन बढ़ाना हो, मांस धातु की विकृति हो, ऐसे में हमें मांसरस तैयार करना है। इसमें हमें 8 गुना पानी डालकर हमें 1/4 रखना है, 250 ml आंसर देना होगा 60 ml। सेकंड जो है शेयर बंद कर दिया। हाँ? शेयर बंद हो गया, शेअरिंग बंद झालंय त्यांच्याकडे। मैडम शेयर बंद झाला है ना? पीटी अभी नहीं दिख रहा है। आपने वीडियो दिखाया था, वो दिखा था। शेअरिंग बंद हो गया। आपल्याकडून झालं का मॅडम? शेअरिंग बंद झालं? हाँ सर, हाँ सर, अभी अभी शेयर बंद है सर आपका वीडियो के बाद।
शेयरिंग का ऑप्शन आपकी तरफ से मैडम शेयरिंग बंद है। ओनली मीटिंग ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट ओनली मीटिंग ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंटर्स कैन शेयर। Sir, एक second. Sir, you can share from your end. You can just like आप दोबारा एक बार re-enter करके and then try to share. ओके, री-एंटर करके शेयर करो। लीव करो लीव करो मतलब शेयर ऑप्शन तो आ ही नहीं रहा मेरे Sir, यहाँ, नहीं है मैडम। आगे अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। no. ओके, अभी हमने इसके पहले बाउंसरस कैसे बनाते हैं और उसका प्रयोग देखा है। अभी मस्तिष्क रस का जनरल प्रैक्टिस लगाया जाता है। जैसे मस्तिष्क आपने देखा है, पूरे गोट का मस्तिष्क लेना है और उसको उबाल कर उसमें सेंधा नमक डालना है। फिर आपको बताना चाहता हूँ कि जो एक लास्ट जो एक फोटो है, पिक्चर है, उसमें जो है वो इस प्रकार से हमें उबालने के बाद मिलता है। इसके बाद हमें उसको मिक्सर में डालना होता है। मिक्सर में उसका घोल तैयार करना है, मिक्सर करना है। मिश्रण में हम सेंधा नमक डाल सकते हैं और इसका प्रिपरेशन कर उसको 240 ml मात्रा में रुग्णों को इसको दे सकते हैं। एक ऐसी व्याधि है जो स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस और स्पॉन्डिलोलाइसिस दोनों व्याधियां ऐसी है जिसके लिए ना ऑपरेशन ना कोई ट्रीटमेंट। ऐसे नेक्स्ट वन। तो ये पेशेंट और ये जो हमने देखा है कोलियस फ्रैक्चर इन थोरेसिक 12 वर्टिब्रा विथ लोअर लिम्ब पैरालिसिस विथ पार्शियल लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल। थोरेसिक फ्रैक्चर होने के कारण या लंबर स्पाइन में फ्रैक्चर होने के कारण दोनों पैर पैरालाइज होना या पैरालिसिस हो जाना और चलने में रुकने को वीकनेस लगना, टिंगलिंग सेंसेशन होना, तो ये लक्षण इसमें मिलते। तो इसमें नेक्स्ट हम दशमूलादि वसाबस्ती किस तरह से इसका कार्य करती है। दशमूल वसाबस्ती का दशमूल वसाबस्ती 500 ml भी देना है और उसके साथ में अनुवासन बस्ती क्षीरबला तेल दिया था और कभी कभी आवश्यकता होती है तिक्ता क्षीर बस्ती की। अब इसके लिए मैंने कभी शस्त्रशैली का प्रयोग किया है। वो मांसरस अजा मांसरस में उसको पकाया हुआ है, पक्व किया हुआ है और उसमें कुक्कुट अंडा और तेल धारा भी दी हुई। तो ऐसे रुग्ण में हमें कभी कभी मल्टीपल ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता होती है। दशमूलादि वसाबस्ती में क्वाथ है, कलका द्रव्य है, वसा स्नेह है और गोदूध। वसा को पहले बॉईल करिए, बॉईल करने के बाद उसको छान लीजिएगा। छानने के बाद जो प्रिपेयर क्वाथ है वो क्वाथ को एकत्र करिएगा और के बाद उसमें कलका द्रव्य डालिए। कलका द्रव्य का उसका घोल मिश्रण बना लीजिए, उसको प्रिपेयर कर लीजिए और उसको बॉटल में भर दीजिएगा और वो रुग्ण को देना है। तो उसके बाद जो है, जो व्याधि है
ये पॉट स्पाइन, ये भी बहुत ही अनोखी व्याधि है जिसके लिए विश्व में चिकित्सा नहीं है। और मुस्तैद यापन बस्ती, इसका जो रोल है, पॉट स्पाइन, thoracic vertebra with paraparesis with bowel and rectum। ये रुग्ण जब मेरे पास आया था, ये एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स 7 मंथ से ले रहा था, 7 मंथ से इज टेकिंग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, देयर इज नो रिजल्ट एट ऑल। जैसे आई थी वो निश्चित अवस्था में आई थी। शायद मैं ये जो आप देख रहे हैं कि जहाँ पे पॉट स्पाइन है, वहां पे जो व्हाइट स्पॉट देख रहे हैं वो फ्लूइड कलेक्शन है। तो मैं सोच रहा था कि जब एडमिट हुई थी तो ये शायद मैं इस पे ट्रायल करूं, लेकिन वो ठीक तरह से नहीं हो पाएगी, ऐसा मुझे लगा। और उसके एक ऐसा हुआ कि मैं एक फोटो निकलना भी मिस कर दिया, यानी एक फोटो भी उनका नहीं निकाला। देखते हैं उसमें क्या ट्रीटमेंट की हुई। इसमें मुस्तैद यापन बस्ती का रोल कई कई व्याधियों में बहुत अच्छा है। यापन बस्ती की जो मात्रा बताई है अष्टांग हृदय, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में काफी अधिक मात्रा बताई है। यापन बस्ती की मात्रा करीब करीब तो 2000 तक भी बताई हुई, लेकिन 2000 मात्रा में हम यापन बस्ती नहीं दे सकते हैं। तो इसमें हम 500 ml की मात्रा दे रहे हैं, और उसके साथ में यही रुग्ण को पंचतिक्तक क्षीर बस्ती भी दी हुई है। इसकी भी वीडियो है। जब आया था तब इसको एम्बुलेंस पे लाया था, और करीब करीब हम स्ट्रेचर पर लेके इसको बेड पर लिया गया था। उस समय इनके पैर में बिल्कुल ही हलचल नहीं थे। इनके दोनों हाथ अच्छे थे, तो दोनों हाथों पे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बॉवेल और रेक्टम कंट्रोल मतलब पार्शियल गया हुआ था। तो ऐसे रुग्णों में हमने मुस्तैद यापन बस्ती दी हुई है और पंचतिक्तक क्षीर बस्ती, और शैष्टिक शालीवीर अजमांस रस के साथ में कुकुटा ऐड किया हुआ, और तेल धारा महामास तेल और लाक्षादी तेल और मुरविन्ना तेल इसी दिया हुआ है। तो मैं इसका भी वीडियो दिखाना चाहता हूँ आपको। ये भी आई थी मैडम, दिख रहे हैं? हेलो जी सर। जी सर। ये पेशेंट से 21 डेज रह के गई है घर में, तो घर में इनको इतना अच्छा रिजल्ट मिला है कि वो करीब पैर उठा पा रही है, हाथ उत्थापन अच्छा कर रही है। चलो। ये वीडियो कंसल्टेशन किया हुआ था मैंने कि वो कैसे हैं, वो बता रहे हैं क्या क्या प्रॉब्लम था।
रुग्ण हंसते हुए इस साथ साथ दिन के बाद इनसे हम वीडियो कंसल्टेशन करते रहे और एक लास्ट वीडियो है इसका। हम कहीं मंदिर में गए थे कहीं भोपाल के आसपास, वही मंदिर में वट की पूजा कर रही थी ये, वो वीडियो नहीं डाला है मैंने। तो ये काफी मतलब दिलचस्प केस है जो हॉट स्पाइन की केस है। यही है, हमने मुस्तादी यापन बस्ती को देखा हुआ है। ये इसमें क्वाथ प्रिपरेशन जो होती है 350 ml, माउंसरस 120 कलकत्ता में 30 ग्राम, घृत है 120 ml, मधु 120 ml और संदेव 10 ग्राम। तो इस मात्रा में हमने फिर ये मधु, संदेव, स्नेहा हमने ऐड किया हुआ है और उसको विघर्षण किया हुआ है, उसका घोल बनाया हुआ है। उसके बाद कल्क ऐड किया हुआ है, फिर मांसरस, फिर दुग्ध, फिर क्वाथ और ये बस्ती द्रव्य बना हुआ है। फिर रुग्ण को अंतर प्रविष्ट करना है गुदा में। एक स्टडी है जो प्रायोगिक रूप में स्थौल्य में तो हर गुरुजन बोलो या कोई भी प्रैक्टिशनर लेखन बस्ती का प्रयोग तो हमेशा करते ही है, लेकिन एक प्रयोग करते करते मुझे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम जो आया था वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। जो सुश्रुत संहिता में और आचार्य वंग शिंदे उष्गादि गण की जो मात्रा बताई थी वो मात्रा है 8 तोला, जो कि सुश्रुत संहिता में बताई हुई है। और आचार्य वंग शिंदे जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करने के बाद उसमें से जो ऊषक है तुत्था और काशिश के कारण रुग्ण में तीव्र पीड़ा होती है, प्रक्षोभ होता है पूरे पेट में, और उसके कारण कुछ लक्षण ऐसे मिल जाते हैं कि हमें अत्यधिक चिकित्सा करनी पड़ती है। अत्यधिक तीव्र उदर पीड़ा, उदरवेष्टन, अधिक प्रवाह या बार बार उदर पीड़ा के कारण शौचालय में अधिक काल तक बैठना, मतलब सीट पर ही इनको बैठने काफी समय तक बैठना पड़ता है। अधिक श्वेत प्रवृत्ति होते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि रुग्ण मूर्छित हो जाता है, नाड़ी मंद हो जाती है और बीपी लो हो जाता है। तो ऐसे रुग्ण में मुझे ये एलोपैथी की चिकित्सा देनी पड़ी। इंजेक्शन डिक्सामेथासोन 2 ml IV, इंजेक्शन बस्कोपैन 1 ml IV और इंजेक्शन रानिटिडिन 2 ml IV, क्योंकि ये जैसे कोलैब जैसी हो गई थी और मंद पल्स हो गई थी, इसलिए तात्कालिक चिकित्सा करनी पड़ी। उसके बाद हमने सोचा है कि लेखन बस्ती में जो हम उष्गादि गण के जगह और कुछ कर सकते हैं, तो हिंगु वचादि योग का प्रयोग किया है। और ये हिंगु वचादि योग का प्रयोग जब से हम करने लगे हैं तब से ऐसी आपत्ति नहीं आती है। कोई रुग्ण को स्वेद प्रवृत्ति होती है, तीव्र पीड़ा होती है, लेकिन करने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए हिंगु वचादि चूर्ण में हिंगु वचा, हरिद्रा, वनतुलसी, दाढ़ी, अजमोदा, धान्य, पाटा, पुष्कर्म, खरजूर, हपुषा, चित्रक, यमोक्षार, सज्जिका, सैंधव, शुंठी, पिप्पली, मरीच, जीरक, जैव और अमृत, इसका प्रयोग हम कर रहे हैं। सैंधव 7.5 ग्राम, यमोक्षार 20 ग्राम, मधु 120 ml, मूर्छित 180 ml, कलकद्रव्य 60 ग्राम, गोमूत्र अर्क। इसमें गोमूत्र लेने की है, लेकिन हम अर्क कभी कभी यूज करते हैं कि गोमूत्र एवेलिटी, उसका जो प्रमाण है 1:5। तो जैसे 250 ml हमें गोमूत्र डालना है तो हम अर्क 15 ml डालते हैं और ट्रिपल अक्वा 300 ml। टोटल द्रव्य 750 ml में हम लेखन बस्ती दे रहे हैं। पहले तो जो उष्ण जल दिया हुआ है, उष्ण जल में हमने औषध द्रव्य डाले हुए, जैसे निरोबस्ती की प्रोसीजर होती है उसी प्रकार से घोल डाला हुआ है, फिर गोमूत्र अर्क डाला हुआ है, उसके बाद कल्क द्रव्य डाला हुआ है।
उसके बाद इसको हमने मिक्सर में 45 सेकंड के लिए इसको मिश्रित किया है 45 सेकंड तक। तो मिश्रण का घोल प्रिपेयर करके इसको रुकने में दिया हुआ है। ये लेखन बस्ती। इसके बाद आती है बस्ती ओलिगोस्पर्मिया, क्रैब बस्ती। ओलिगोस्पर्मिया आपकी डेफिनेशन आपको पता है, लेस देन 15 मिलियन स्पर्म इन 1 मिलीलीटर। और उसके साथ में ऐसा है, इसके साथ में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, डिलेड इजैकुलेशन, लैक ऑफ सेक्सुअल ड्राइव, इस प्रकार के जो सिम्टम्स रुग्ण में मिलते हैं वो रुग्ण में कर्कटक बस्ती देते हैं। कर्कटक बस्ती में शर्करा 10 ग्राम, मधु 50 ml, लूता 50 ml, कुक्कुटांडा 100 ml, कर्कटकवात 100 ml और टोटल 300 ml की मात्रा बनी। और कर्कटक बस्ती जो दी हुई है वो 500 ml में ट्वाइस ए वीक फॉर 3 months। इस प्रकार से कई लोगों को 2 month, कभी 3 month, ऐसे सप्ताह में 2 बार। एक क्रैब है कर्कट मांसरस तैयार करने के लिए हमें 2 क्रैब की आवश्यकता होती है, 2 कर्कटक लाना होता है, क्योंकि इतने बड़े बड़े कर्कटक होने के बाद भी बहुत मुश्किल से एक कर्कट से हमें मांस जो मिलता है वो 25 to 30 ग्राम से अधिक मांस नहीं मिलता है। इसलिए हमें 50 to 60 ग्राम मांस के लिए हमें 2 कर्कट लाने की आवश्यकता होती है। कर्कट को लाने के बाद उसके पैर को तोड़ना है, पूरी तरह से उसको अलग करना है। जो शरीर बचा हुआ है उस शरीर के ऊपर जो लेयर है, ऊपर लेयर को तोड़कर उसके नीचे जो मांस मिलता है, जो राइट साइड में जो साइड है वो, इसमें इस प्रकार का मांस हमें ये 2 कर्कट से मिला हुआ। उसके बाद उसका मांसरस तैयार निर्माण करना, या मांसरस पानी में डालते हैं, पानी में डालकर उसका मांसरस बनाते हैं। फिर मांसरस में कुक्कुटांड, एक कुक्कुटांड करीब करीब 50 ml 60 ml के आसपास इसमें रस होता है, ऐसे 2 कुक्कुटांड लेते हैं। और 2 कुक्कुटांड, अभी ये सारा कुछ दिया हुआ है, मांसरस, कुक्कुटांड, शर्करा, मधु और तो इसी के साथ में इसको प्रिपेयर किया है। फिर इसको घर्षण करना है, घर्षण के बाद इसको छानना है, छानने के बाद इसको प्रिपेयर करना है और इसको ड्रिप मेथड से देना है। ये प्रिपरेशन ऑफ कर्कट स्वाद। तो इसी के साथ में आप आरईवी के डायरेक्टर मैडम एवं उनकी टीम तथा सभी गुरुजन एवं विद्यार्थी ने जो ध्यान देकर सुनाया है, जो भी गलती या अत्यधिक आपको लगा कि मैं कुछ और बोल रहा हूँ तो मुझे माफ करना है। और यदि किसी को कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न आप पूछ सकते हो। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर ने अपना Thank you, ma'am. एक्सपीरियंस बहुत प्रैक्टिकली सबके साथ शेयर किया है और जो हम भी प्रैक्टिस में बता सकते हैं उसके सारे डिटेल्स शेयर किए हैं। तो अगर किसी को भी और कोई डाउट है तो प्लीज कृपया। नागर साहब बहुत सुंदर, नमस्ते नमस्ते सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। देखिए बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मंगल हो आपका। थैंक यू, धन्यवाद सर, धन्यवाद। सर गुरु जी प्रणाम। मैं- हाँ, सर, हाँ, गुरु जी मैं एक हम्म। पूछना चाह रहा था कि जो आप कैथेटर का बता रहे थे, जो अपन धातु का कैथेटर यूज करते हैं वो तो आगे से ओपन रहता है, और हाँ। अपन रबर कैथेटर यूज करते हैं तो वो आगे से ब्लंट रहता है और पार्शियली ओपन रहता है। तो क्या हाँ, अपने को आगे से रबर कैथेटर को कट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं सर।
आगे से कट करेंगे तो उसमें शार्प धारा होगी और वो एनएस को इंजुरी करेगी। तो उससे ज्यादा अच्छा है कि ये फ्लैटस ट्यूब बाजार में अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है, कहीं भी मिलती है। फ्लैटस ट्यूब को भी पार्श्व छिद्र है, लेकिन अग्र छिद्र बड़ा होने के कारण जो बस्ती का जो फोर्स होता है वो पार्श्व छिद्र इस पे कोई अवधान नहीं करता, तो पक्वाशय में अंतर प्रविष्ट अच्छे से हो जाता है। लेकिन कैथेटर या फ्लैटस ट्यूब को बीच पे कट नहीं करना है, उससे व्रण होने की पॉसिबिलिटी बहुत अधिक होती है। जी गुरुजी। जी गुरुजी, मेरे को एक क्वेश्चन और पूछना है कि हाँ, सर जो बोलिए। जीपीएस होता है, गेरन-बिन सिंड्रोम में, गुइलेन-बेरी सिंड्रोम, हाँ जी। जी, तो सर उसमें आपका कुछ अनुभव हो तो सर प्लीज शेयर करेंगे। गुइलेन-बेरी सिंड्रोम तो हमने पेशेंट हमने बहुत देखे हुए हैं और कुछ ठीक भी किए हुए। प्राइमरी स्टेज में जब एक्यू स्टेज होती है तो एक्यू स्टेज में हम तो पेशेंट लेते ही नहीं है, और या तो पेशेंट हमारे यहाँ आते भी नहीं है, आते भी है तो हम रेफर कर देते हैं न्यूरोलॉजिस्ट की तरफ। और जब पेशेंट उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम ये सारा कुछ स्टेबल हो जाने के बाद, जब रुग्ण को संवेदना नहीं होती है या उनके क्रियाल पता होती है, पैरेसिस रहता है, रुग्ण को चल नहीं पाता है, ऐसे रुग्ण को हम काफी अच्छे से चिकित्सा कर सकते हैं। उसके लिए शुरू में हम ये चूर्णा वर्तन करेंगे रुक्षण के लिए, उसके बाद अभ्यंग नाड़ी स्वेद ये करते हैं, फिर पिंड स्वेद या जंबीर पिंड स्वेद करते हैं या कल का पोटिली स्वेद करते हैं। उसके बाद धीरे से तेल धारा करते हैं, तेल धारा का, और बस्ती जो देना है वो बस्ती उन पेशेंट में मुस्तबियापन बस्ती, कभी कभी हमें दशमूल मज्जा बस्ती, ये भी काफी अच्छा रोल करते हैं। तो भ्रुवन संतर्पण बट अपतर्पण चिकित्सा करनी होती है। कोई वैद्य ऐसे होते हैं कि संतर्पण ही करना होता है, जैसे कार्शता है तो हम संतर्पण ही करें, लेकिन कोई वैद्य ऐसी होती है कि संतर्पण करने की आवश्यकता तो होती है, लेकिन शरीर में स्रोतरोध हो, मेदो धातु के अधिष्ठान अधिक हो, तो ऐसे रुग्ण में हमें अपतर्पण की भी आवश्यकता होती है। तो ऐसे बस्ती का आप ये ले सकते हो कि जिसमें संतर्पण अपतर्पण दोनों। ये मुस्तदियापन उसी में से है, इसमें दशमूल क्वाथ भी है, कल्क भी है, दुग्ध भी है, मांसरस भी है, मधु भी है। तो कुछ औषध द्रव्य जो है वो जो औषध द्रव्य स्रोतों को ठीक करते हुए है और कुछ तर्पण करते हैं। तो इस प्रकार से हम इनकी चिकित्सा कर सकते हैं, अच्छे होते जी हैं। हाँ जी, नमस्कार गुरुजी, धन्यवाद। मैं राजकोट से बोल रहा हूँ नमस्कार। सर। हाँ बोलिए सर। सर कर्कटा जो बस्ती आपने बताई सर, अगर हाँ पेशेंट जी, वेजिटेरियन कोई हो तो उसको हाँ कोई जी। ऐसा फॉर्मूला दे सकते हैं ओलिगोस्पर्मिया में? नहीं तो वो तो यदि टोटली वेजिटेरियन हो तो हमारे हम्म, यहाँ है, सिर्फ जैन लोगों में हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन बाकी पेशेंट तो मान जाते हैं कि भाई खाना तो नहीं है हमें, हमें तो बस्ती से ओके। दवा देना है, ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और कई पेशेंट है जो 99% तो एक्सेप्ट करते हैं, 1% एक्सेप्ट नहीं करते। इसके साथ हाँ, में कोई और जैन मैं आपको, कम्युनिटी ये सब जो होती है ना सर, तो वो थोड़ा हाँ जी, प्रॉब्लमेटिक होता है तो इसलिए। उनको देना नहीं है ना, अश्वगंधा है, कभी ओके। कच्चू है, विदारी कंद है, जुवंती है, बहुत सारे रंग, उसका बस्ती ओके। दीजिएगा। हाँ, हाँ जी, हाँ। थैंक यू अच्छा सो ये देखिएगा, मच। अपना स्नेहा जो मधु तैलिक बस्ती है, मधु तैलिक बस्ती का काफी अच्छा रोल है। ओके, थैंक यू सो मच सर। हाँ, एक्सक्यूज मी सर, मैं पूछ सकता हूँ? हाँ, हाँ पूछिए सर। सर, आपने जो अलग अलग विकल्प जो फार्मूला बताए हैं वस्ती जैसा अंकलाइजिंग स्पॉन्डिलोसिस और जैसा पॉट्स डिजीज, आपने जो या, विकल्प किया कोई शास्त्र के आधार है, नहीं तो आपका विकल्प है? इसमें शास्त्र का आधार भी है और मेरा खुद का विकल्प भी है। शास्त्र के आधार के बिना तो हम कुछ नहीं कर सकते, सबसे पहली बात। जैसे आप कह रहे हैं कि
एंकुलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। अभी ये मैंने आपको बताया कि एंकुलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में हम वैतरण बस्ती दिए। अभी वैतरण बस्ती का पार्ट चक्रा दत्त ने दिया हुआ है, और वैतरण बस्ती ऐसा है कि जो आमवात में और वात रक्त दोनों में चलती है। हाँ, तो मेरा कहना ये हाँ पार्ट सर मेरा सर, नहीं, सिर्फ इसका जो ये है मात्रा जो है, वो मात्रा का वेरिएशन हम कर सकते हैं। जैसे इन व्यक्ति में हमने 450 ml दिया है, तो कई प्रवर मात्रा में 600 ml देंगे, अवर मात्रा में 350 ml देंगे। ये विकल्प हमारा। आपने जैसे बताया मस्तिष्क अवस्थी, सर बोलिए। ये आपने बताया मस्तिष्क अच्छा, अवस्थी। मस्तिष्क बस्ती। हाँ अच्छा, मस्तिष्क बस्ती। ये हाँ मस्तिष्क हाँ बस्ती तो मैंने निकाला हुआ है, ये शास्त्र में कहीं नहीं है, क्योंकि हाँ हाँ जैसे गोट में मस्तिष्क होता है, हमें भी मस्तिष्क होता है, पुरुषों में भी होता है। तो इसका कुछ ये देखकर मैंने सेरेब्रल एट्रोफी, छोटे बच्चों में इसका प्रयोग किया है कि सेरेब्रल पाल्सी में और हाँ डिमेंशिया में इसका बस्ती हाँ मैं देता हूँ, क्योंकि इतने सारा क्वाथ के साथ में, कल्क के साथ में कोई बस्ती देना वो टिकता नहीं है। तो हाँ उसका भी जैसे लोग सलाइन लेने के लिए चले आते हैं एलोपैथी हाँ डॉक्टर के पास, तो ये समझ लीजिए कि मांसरस हमारा सलाइन है, मस्तिष्क का रस बस्ती ये हमारा सलाइन है, डेक्ट्रो सलाइन है। इस टाइप से आप विचार करो तो प्राइवेट प्रैक्टिस पे इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है और काफी अच्छे रिजल्ट पाए हैं हमने। हाँ सर, मैं यही जानना चाहता था, तो हाँ जी, क्योंकि हाँ जी, हाँ। अभी हम भी ऐसा कुछ ये फार्मूला बनाते रहते हैं जैसा रोगी के अनुसार और रोग के अनुसार, तो यही आपसे जानना था। थैंक यू वेरी सर जी, मच। हाँ, रोगी के मैंने ज्यादातर, हाँ जरा। प्रणाम सर। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार। सर ये क्रिकेट बस्ती जो आप बता रहे थे, इसके साथ हम बस्ती के साथ कोई इंटरनल मेडिसिन भी ऐड कर सकते हैं कि आप देते हैं कि देना चाहिए? सर ये थोड़ा सा मुझे ब्रीफली बताइए सर। ये सारे बस्तियों के साथ में इंटरनल मेडिसिन दे सकते हो, सारे जितने भी मैंने बताया, या हजारों बस्ती है। लेकिन एक ऐसा है, एक मेरा कंसेप्ट है, मैं बता रहा हूँ आपको, कि जब जी भी सर। शोधन की प्रक्रिया होती है तो शोधन बस्तियों के बीच में आप कुछ रसायन या कुछ ऐसे मेडिसिन हो जिसमें सुवर्ण हो, रसौषधि हो, ऐसे मेडिसिन को नहीं देना चाहिए। लेकिन जहाँ पे ब्रुहन ओके के सर। लिए देना है तो ब्रुहन के समय आप अंत दे सकते हो, जैसे विदारिकंद, जीवा, कपी कच्चू, ये सारे दे सकते हैं। उसके साथ में मैं और दो फॉर्मूले आपको फिर से बता देता हूँ कि जैसे कर्कटक बस्ती हमने ऑलिगोस परिमिया में यूज किया, वैसे मैं अजा अजांड अजा के जो उरुशन होते हैं उसको दुग्ध में पकवा कर उसका भी बस्ती देते हैं। और मैंने तो अपनी खुद की कल्पना फिर से लगाई हुई है कि जो वराह होते हैं, जी वराह सर। को एक साथ 6 बच्चे होते हैं, है ना, तो उनकी कैपेसिटी बहुत अधिक होती है। तो मैं वराह के उरुशन लाके भी बस्ती बनाकर पेशेंट को देता हूँ। तो इसका भी बहुत अच्छा लाभ रुग्ण में ऑलिगोस्पर्मिया, इरेक्टल फंक्शन, सम्मोहक शक्ति की कम होना, ये सारे में अच्छा उपयोग करता हूँ। सर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में अगर इसको करना है, एक जैसे वरा वाला बता रहे, तो वरा वाला ज्यादा बेटर है क्या? हाँ, वरा वाला ज्यादा बेटर नहीं, वरा वाला तो स्पर्म काउंट के लिए काफी अच्छा है। और यदि जी जी सर। आप बस्त्यांड का प्रयोग अधिक कर सकते हो। बस्त्यांड और का प्रयोग इंटरनल मेडिसिन सर, आसान। कोई अगर इसके साथ इंटरनल मेडिसिन प्रीमेच्योर में लगाना चाहें सर? तो आप मकर ध्वज दीजिएगा 125 मिलीग्राम बीडी, वसंत ओके सर। कुसुमा का रस दीजिए 125 मिलीग्राम बीडी। ये दो ड्रग स्वर्णकल्प है। कामचूड़ामणि रस है जो कालेडा का मिलता है, उसका वीर्य स्तंभ, उसके बाद शिलाजीत वटी है, चंद्रप्रभा है, बहुत सारे मेडिसिन है जो हम दे सकते हैं। और सारे शुक्रल मेडिसिन जो है, कपिकच्चू सबसे अच्छा है, कपिकच्चू है, अश्वगंधा, जीवक है, अष्टवर्ग है, बहुत सारे औषध द्रव्य है जो हम दे सकते हैं। और कोई लोकल एप्लीकेशन भी है, वो वाजीकरण तीला करके दे सकते हैं, जो लोकल एप्लीकेशन से ही
वहाँ के मांस धातु हो, तो मांस धातु इरेक्शन करने में मदद करता है। ठीक है सर, थैंक यू सर। या प्रणाम सर। प्रणाम मैडम, प्रणाम। हाँ जी मैम, मैं छत्तीसगढ़ से वैद्य मनीषा सिंह, मैं सर की हाँ बोलिए मैडम। विषय हूँ। हाँ, प्रणाम बोलिए। सर। सर बोलिए मैडम। ये जो एवियन में हम देते हैं तिक्तशीर बस्ती, तो इसका ड्यूरेशन कितना कितना होना चाहिए सर? एवियन में तिक्तशीर बस्ती जी तिक्तशीर बस्ती भी दे सकते हैं, और साथ साथ में हमें कोई भी बस्ती देते समय ये याद रखना है कि जी कोई भी संतर्पण बस्ती, मतलब तिक्तशीर बस्ती या अनुवासन बस्ती कंटिन्यूस नहीं देना। जब भी हमें ऐसा लगे कि शरीर में गौरवता, मतलब हेवीनेस लगे या जी जी वचन पर कोई डिस्टर्बेंसेस आ जाए, तो उसके बाद फिर हम आगे निरो बस्ती में से कोई शोधन बस्ती दे। ठीक है। हाँ जी सर। आपका प्रश्न जी है जी पंचतिक्तशीर बस्ती, ये सप्ताह में 2 बार दे सकते हैं, ऐसे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने। लेकिन एवियन के पेशेंट को जब हम प्रयोजन करते हैं, तो उसके साथ में हम और भी चिकित्सा करते हैं, जिसमें जी कुकुटांड डाले हुए हैं, पिंडस्फेर। उसके बाद बस्ती जो है वो ये दशमूला आदि वसा बस्ती का बहुत अच्छा रोल है। पंचतिक्त अनुवासन, इसको अल्टरनेट देते रहते हैं। और जब जी पेशेंट सर, इसमें डिस्चार्ज होकर घर जाता है ना, जी सर, ये कॉम्प्लिकेशन आया था, उसको गुरुता हुआ और मोशन भी नहीं हो रहा, तो फिर मैंने उसको चेंज किया, वीकली फिर 2 डेज ही दिया, अभी दे रही हूँ। वीकली रोज नहीं देना है। पंचतिक्त नहीं क्षीर सर, बस्ती ये रोज नहीं देना है, ये हाँ जी, वीकली, सप्ताह में 2 दिन। जी 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 सप्ताह में 2 बार। उसके बाद भी जी यदि हमें लक्षण स्तब्धता, उदर जी गौरवता, आलस्य लक्षण आते हैं, तो हमें चेंज जी करना है, शोधन बस्ती देके फिर से शुरू करना जी 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 है। हाँ जी जी, थैंक यू सो मच सर। या, या। जी सर, आपके नॉलेज से मुझे बहुत ही इंस्पायरेशन भी हुई, और जो आपने सिखाया उसको मैं 100% इम्प्लीमेंट करती हूँ, और रिजल्ट भी 100% आते हैं सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू। अगर और किसी के कोई डाउट्स हैं या कोई एक्सपीरियंस है जो इस प्लेटफॉर्म पे इस विषय से रिलेटेड शेयर करना चाहते हैं। प्रणाम गुरु सर, जी, मैं मैं एक देहरादून क्वेश्चन से हूँ। पूछना चाहता हूँ। जी मैडम, प्रणाम आप पूछिए करें। सर, कौन? बोलिए ना। हेलो सर जो भी प्रणाम सवाल, सर। हाँ बोलिए। प्रणाम। सर एक क्वेश्चन है, एमएनडी मोटर न्यूरॉन डिजीज के पेशेंट्स में। सर हम पेशेंट को बहुत डिसबैलेंसिंग है, और सर उसको गले में भी प्रॉब्लम है, तो सर मेडिसिन देने से काफी आराम है, बैलेंसिंग में सिर्फ ट्विचिंग वगैरह भी है सर, और सब में तो आराम है सर। इनमें बस्ती में हम सर किस बस्ती में जाएंगे और कैसे जाएंगे सर? थोड़ा इसमें प्रकाश मार्गदर्शन कर दीजिए प्लीज। मोटर न्यूरॉन डिसीज में यदि बल अच्छा है तो यापन बस्ती दीजिएगा, दशमूलादि यापन बस्ती दे सकते हो। और यदि मांस धातु का क्षय यदि है तो मांसरस बस्ती भी दे सकते हो, अच्छा रोल है। और यदि आपको मेडिसिन से इतना रिजल्ट आ रहा है, तो उसके साथ यदि बस्ती आप जोड़ देते हैं, तो उसका रिजल्ट और अधिक आएगा। और इसमें मोटर न्यूरॉन डिसीज में धन्वंतरम तेल का अनुवासन बस्ती भी काफी अच्छा रोल है, धन्वंतरम तेल। तो उसके साथ जी में जी दशमूलादि मज्जा बस्ती और या दशमूलादि यापन बस्ती। अच्छा, बस्ती या या मासरस बस्ती या धन्वंतरम तेल की सर मात्रा बस्ती भी दे सकते हैं सर इस पेशेंट को, जैसे उसको अगर वहां सुविधा नहीं है, पेशेंट दूर है, हाँ, तो मात्रा बस्ती दे धन्वंतरम सकते हो। धन्वंतरम तेल धन्वंतरम की मात्रा बस्ती 120 ml की कम से कम देना होगा आपको। सर 14 डेज तक दे दें? हाँ, लेकिन कंटिन्यू तो 14 डेज कोई पेशेंट को नहीं दे सकते, उसको आपको बदलना होता है, क्योंकि 3 या 4 बार मात्रा बस्ती देने के बाद यदि फिर से गौरवता आती है, तो तुम्हें
कुछ ना कुछ शोधन बस्ती या विरेचन देना होता है, या विरेचन भी दे सकते हैं कुछ दिन की गैप देकर। एक विरेचन दे दीजिए, एरंडस ने 30 ml मात्रा में दे दीजिए, या इच्छा विधि की 2 गोलियां दे दीजिए, या 1 गोली दीजिए। 3 या 4 बार यदि उसको मोशन हो जाती है तो शरीर शुद्ध हो जाती है, लाघवता आ जाती है। उसके बाद फिर से आप धन्वंतरम तेल की बस्ती फिर से दे सकते हो। सर जो हम अनुवासन वस्ती तो नहीं दे रहे हैं, अगर मात्रा वस्ती दे रहे हैं तो सर मात्रा उसकी 60 ml ही रखेंगे ना सर? मात्रा बस्ती मैडम, मात्रा बस्ती 60 ml ही है, जी। लेकिन कभी कभी ये मात्रा बस्ती इतना अच्छे से काम नहीं करेगी। अभी थोड़ा सा इसके ऊपर विवादास्पद ये है कि अक्सर बहुत सारे वैद्यगण मतलब सीनियर नहीं, नए लोग भय के व्यापक के कारण बस्ती की मात्रा बहुत कम देते हैं, कभी 15 ml, कभी 30 ml। और जी, जी, मैक्सिमम जी। है ना, इसकी जो शास्त्रोक्त मात्रा है वो 240 ml है, प्रवर मात्रा। मध्यम मात्रा 120 ml है, और जी, मात्रा बस्ती जो देते हैं वो 60 ml की मात्रा। जी सर। अभी इसका जो कार्मुकत्व है अनुवासन बस्ती का, वो कार्मुकत्व सिर्फ अपान वायु को नॉर्मल करना ये नहीं है। यदि जी, मोटर न्यूरॉन डिसीज में आपको देना है तो उसको पूरे संपूर्ण शरीर पर ये तेल का असर हो जाना चाहिए। और जब तेल का असर जब भी होगा जब आपकी मात्रा ग्रहणी तक पहुंचेगी। जब आप 60 ml में मात्रा बस्ती दोगे तो ये पक्वाशय तक ही सीमित हो जाती है, और इसका एब्जॉर्प्शन बहुत अधिक नहीं है। ये प्लावित भाव से धीरे 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 करते करते जब ग्रहणी में पहुंचता है, ये ग्रहणी 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, और अपने स्नेह का कार्य करने के लिए वहां उसका डिवीजन होता है ड्यूोडेनम, ग्रहणी में। जी, और वहां से जी, फिर ये संपूर्ण शरीर को मिलता है। एक्चुअली कंसेप्ट ये है, जी, 15 ml या 30 ml के मात्रा बस्ती से कुछ भी नहीं होगा। उससे सिर्फ गुदाशय गीला होगा और अपान वायु का प्रवर्तन होगा। उसके बाद जो समान वायु, उदान वायु, प्राण वायु और व्यान वायु को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राण वायु, उदान वायु सबको यदि हमें रिजल्ट देना है तो आपको 240 मिनिमम 200 ml 100 ml की मात्रा देनी होगी। जी सर, जी सर, जी सर। और सर 3 जैसे हम 3-4 दिन देकर फिर इसको सर विरेचन दे दें 1 दिन और 2 दिन रेस्ट करा दें, फिर शुरू कर दें सर मात्रा बस्ती 3-4 दिन। ऐसा कर रहे हैं सर? हाँ, ऐसा कर सकते हैं। 1 दिन के 8 दीजिएगा, फिर आपको विरेचन देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छा, अच्छा। हाँ, सर उसको और उस बैलेंसिंग पीरियड में सर मेडिसिन से काफ़ी आराम हो रहा है, सिर्फ बैलेंस को सर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं हम। हाँ, हो जाएगा धीरे-धीरे, और भी ये चिकित्सा ऐड करोगे तो। जी सर सर। इसमें नस से भी दे सकते हैं ना? नस से दे सकते हैं हाँ, ना? नस से देने पे अच्छा रिजल्ट आता है सर। क्षीर वाला हाँ, 101 और नशे भी दे सकते हैं। नस से पहले वचारी से मैडम जी देखिएगा, जी नहीं, देखिएगा कि कोई भी ट्रीटमेंट कभी भी और कैसे भी नहीं दे सकते जब तक पेशेंट को नहीं देखें। यदि जी सर। यदि मस्तिष्क अवस्था ये आमावस्था में हो या स्रोतरोध अवस्था में हो तो उसमें नशे नहीं दे सकते। यदि उसके पहले जी रुक्षण करिए, रुक्षण के बाद ही नशे दे सकते हो। और नशे सर नहीं देना पेशेंट है को तो हमने पहले जिस पेशेंट को सर हमने निराम अवस्था में ले आए हैं पूरा। हाँ, तो फिर सर नशे दे सकते हो। तो आप सर नस किस तेल अनुवासन से देना अच्छा रहेगा? अनुतेल से दीजिएगा, पंचेंद्रिय वर्धन तेल से दीजिएगा, या जी। मांस रस का नशे दीजिएगा। मांस रस का नशे 5-5 ml डाल दीजिएगा ब्रोहन करके, उसका भी काफी अच्छा अच्छा, रिजल्ट। अच्छा। हाँ, सर जैसे इस समय बरसात है तो नस से सर अवॉइड ही करें ना, इस समय तो बस्ती बहुत अच्छा रोल प्ले करेगी। हाँ, जैसे बराबर। वर्षा ऋतु चल रही है सर। तो बस्ती दीजिएगा। नशे जिस दिन बारिश आती है उस दिन नशे नहीं करना है। हाँ सर उस दिन बादल वाले दिन नहीं करें, वैसे कर दें अगर जिस दिन धूप हो। हाँ, ठीक है सर। सर ठीक है। बहुत-बहुत हाँ, धन्यवाद सर, बहुत-बहुत थैंक धन्यवाद। यू, थैंक यू। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, सर बहुत अच्छा लेक्चर लगा मुझे आपने एक्सपीरियंस हाँ शेयर जी। किया। सर ये हाँ, बस्ती जो है अल्टरनेट क्रम से क्यों देता है, अनुवासन और आस्थापन को? एक बार अनुवासन एक बार आस्थापन,
पहला नहीं क्वेश्चन। नहीं, ऐसा दूसरा कभी प्रैक्टिस पे ये शास्त्र मोड में लिखा हुआ है, हम्म। सुनिएगा। हम्म। योग बस्ती, काला बस्ती, ये प्रकार से उन्होंने गाइडलाइन दी हुई है। मेरे पूरे 40 साल में मैंने ऐसा कभी ही दिया नहीं। मतलब अनुवासन अनुवासन निरुवासन निरुवा, फिर लास्ट में 3, ऐसा कभी नहीं होता है। तुम्हें अगला जो दिन का जो बस्ती है डिसाइड करना है, वो पहले दिन के मला परीक्षण के बाद ही दूसरे दिन का बस्ती डिसाइड करना होता है। अभी ऐसा नहीं हो सकता है। तो जैसा क्रम शास्त्र में दिया है, वो निर्देश किया हुआ है कि तुम्हें एक गाइडलाइन दी हुई है। आफ्टर ऑल बस्ती जो तुम्हें का डिसीजन तुम्हें लेना है। हम जब पढ़ते थे, स्वर्गीय बिंदु माधव जी कट्टी, 40 साल पहले की बात है, तो हमें वो जब एनिमा कैन और ये जो बस्ती नेत्रा और ये लेके किसी के यहाँ भेज देते थे कि भाई आपको बस्ती देना है, तो उनके पास 3 या 4 एनिमा पॉट, सॉरी बेड पेन रखे रहेंगे। जैसे आपने नीरो बस्ती दे दिया है, नीरो बस्ती देने के बाद मल प्रवर्तन हो चुका है, तो पहला वेग कैसा है, दूसरा वेग कैसा है, तीसरा वेग है, मल परीक्षण करो। लिखो, मतलब लिख के रखो, फिर उनको दिखाओ, फिर वो देखेंगे कि दूसरे दिन का बस्ती कौन सा देना है, निरो देना है, अनुवासन देना है, और कौन सा। तो ये डिपेंड करता है लक्षणों के आधार पर। तो ये संशोधन प्राय चिकित्सा है बस्ती कर्म, तो इसके लिए परीक्षण बहुत आवश्यक है। मल ये, परीक्षण क्या देखेंगे सर? मल परीक्षण आवश्यक है आजकल। तो वही बस्ती में जो लैक पोर्शन है जो नहीं करते हैं, वो मल परीक्षण है और गुदा का अभ्यंग है, कोई नहीं करता, और कैथेटर अंदर डाल देती, वो दिशा भी पता नहीं। सर मल परीक्षण से कैसे डिसाइड करेंगे क्या? इसलिए हम कहते हैं बस्ती में शॉर्टकट कैसे आ गया? बस्ती में शॉर्टकट इसलिए आया कि वैद्य अपने आप खुद होके नहीं देते, टेक्नीशियन के भरोसे देता है। बस्ती में ऐसा होता है कि पूरी तरह से औषध द्रव्य नहीं मिलते हैं। 10 मूल आज महाराष्ट्र में अवेलेबल नहीं है, सिर्फ 2 मूल अवेलेबल है, तो भी 10 मूल दुकान में मिल जाते हैं। और रासना जो 350 रुपए की 1 किलो मिलती है, और सही रासना 3500 रुपए की मिलती है। तो ये बस्ती द्रव्य का करेक्शन करना, फिर वो टेक्नीशियन के हाथ में देना, उसका क्वाद निर्माण करना, उसका सम्मेलन करना, ये सारा कुछ जब हमने देखा, तब जाके मैंने ये बस्ती कीट निर्माण की। और इसका सबसे ज्यादा श्रेय जो है मेरा बेटा, जो डॉक्टर वेद प्रकाश गहुकर, जो बेटा है, उन्होंने इसमें काफी परिवर्तन लाया हुआ है। और मेरे डॉटर इन लॉ जो प्रीति गहुकर, जो संहिता में एमडी है, और बेटा काची किस्सा में एमडी है, इन्होंने इसमें, और इसके कारण ही ये बस्ती कीट हो पाई है, पंचकर्म कीट हो पाई है। तो इसमें हम बहुत सारी जगह मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उसका प्रयोग करते हैं। आपका प्रश्न क्या था? मल परीक्षा से कैसे तय करेंगे कौन सी बस्ती नेक्स्ट देनी? तो ये मल परीक्षण में अष्टविध परीक्षा जो है, अष्टविध परीक्षा में नाड़ी मूत्र मलम जीवा, ये पढ़ेगा थोड़ा, क्योंकि अभी बताना मुश्किल है। उसमें देखना है, स्वरूप देखना है, गंध देखना है ना, देखना है, गाढ़ विटकता देखना है, फ्रीक्वेंसी देखना है, कितने बार मल प्रवृत्ति है ना, ग्रथित होती है, गाढ़ होती है, द्रव होती है, सांद्र होती है, पिचिल होती है, सफेन होती है, सकप होती है, सरक्त होती है। इतने सारे एक यदि दर्शन ही परीक्षा करे, इतने सारे फैक्टर्स हमारे सामने आ जाना चाहिए, है ना। फिर उसकी मात्रा में देखे तो अल्प मात्रा, बृहत मात्रा, है ना। तो ये सारा कुछ जो है हमें अष्टविध परीक्षा में यदि देखे आप, तो आपको मन परीक्षण कैसे करना है ये पता चल जाएगा। कैथेटर को और कितना इसमें जो बताया गया है कि शास्त्र में वैगिकी, लैंगिकी, मानिकी, है ना, ये 4 परीक्षण जो है, वो 4 परीक्षण हमें करना है। जैसे विरेचन और वमन में जो बताया गया, यही परीक्षण हमें बस्ती में भी करना है।
सबसे इम्पोर्टेंट लैंगिक परीक्षण है, फिर मानिकी है, मान कितना है ना। वेग कितना है, वैगिकी करना है, मानिकी करना है, और ये सारी चीज, ये परीक्षण से भी आप कर सकते हो। बहुत सारे परीक्षण है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, दोष धातु मल, मतलब शरीर क्रिया, है ना। आप समझ गए हो? जी सर, जी सर। समझ सर गए? एक, हाँ, मैं पूछ रहा था ये सर, ये कैथेटर को कितना इंसर्ट करना चाहिए, कितना लेंथ में? शास्त्र में हमें 4 अंगुल बताया है, लेकिन हम 4 अंगुल से 6 अंगुल तक अंतर प्रविष्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम फ्लैचेस ट्यूब यूज कर रहे हैं। तो धातु निर्मित बस्ती नेत्र आप यूज करेंगे तो 4 अंगुल से ज्यादा नहीं कर पाते हो, क्योंकि उसकी लंबाई उतनी है। उसके बाद कर्णिका लगी हुई है, और हमने देखा है कि रेक्टम, उसके बाद सिग्मोइड कोलन होता है, और सिग्मोइड कोलन में कर्व होना होता है ना। तो सप्त धातु से बनी हुई यदि करना है तो 4 अंगुल से अधिक नहीं, और जो आप फ्लैटर ट्यूब का प्रयोग करेंगे तो 4 से 6 अंगुल आप अंतर प्रविष्ट कर सकते हैं। और कभी कभी बस्ती यदि तो हमने कभी कभी 9 अंगुल तक का भी प्रवेश किया है, जो कि सिग्मोइड कोलन में जाती है। तो उससे भी कोई पेशेंट को नुकसान नहीं है। आप थोड़ा अंतर प्रविष्ट अधिक करते हैं तो नुकसान नहीं, सिर्फ उसमें व्रणादि नहीं होना चाहिए। समझ गए? जी सर, जी सर। ये हाँ, जो ये बस्ती नेत्र बताया आपने, कैथेटर भी इतना इंसर्ट करना? कैथेटर आपको अनुवासन बस्ती के लिए यूज करना है, हाँ, वो भी आप 4 अंगुल 6 अंगुल कर सकते हो, या थोड़ा अधिक भी कर सकते हो। यदि प्रत्यागमित हो जाती है और क्षेत्र में रिटर्न हो जाती है तो आप थोड़ा अंतर प्रविष्ट अधिक कर सकते हो, 6 अंगुल से ज्यादा भी कर सकते हो, 9 अंगुल तक करिएगा कैथेटर। जी सर। गुरु जी, मेरा एक प्रश्न था कि हाँ बोलिए। जब मात्रा बस्ती अपन इंसर्ट करते हैं तो बहुत सारे पेशेंट में ये क्वेरी मिलती है कि वो मॉर्निंग में बोलते हैं कि हमें मल प्रवृत्ति कम हो रही है या नहीं हो रही है। हाँ, तो वहाँ क्या गलती हम कर रहे हैं, या फिर हमें क्या चीज करनी चाहिए? नहीं, मात्रा बस्ती आप देते हो तो मल प्रवर्तन दिन भर में होता है कि नहीं वो देखो। यदि मल प्रवर्तन 1 बार 2 बार हो जाता है तो दूसरे दिन सुबह मल प्रवृत्ति होती ही नहीं है पेशेंट को, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मल है भी नहीं। दिन भर का ऑब्जर्वेशन रखो कि आपने मात्रा बस्ती देने के बाद यदि 2 या 3 वेग यदि आ जाते हैं 24 घंटे में या 12 घंटे में, जब तक मात्रा बस्ती अंदर है, तो वेग आने के बाद कभी दूसरे दिन मल प्रवृत्ति रुकने को सुबह नहीं होगी। लेकिन यदि नहीं होगी, उसमें भी 2 कारण। यदि नहीं होने के बाद यदि आत्मानादि लक्षण हो, अरुचि है, खाने की इच्छा नहीं है, इसका अर्थ ये होता है कि तुम्हारे शरीर में आम बढ़ गया है स्नेह मात्रा बस्ती से भी। आपने रुक्षण अच्छी तरह से नहीं किया है, आपने पथ्यादि का पालन नहीं किया है ठीक से, इस कारण ये हुआ है। और यदि रुक्षण सब कुछ ठीक है, मात्रा बस्ती से 1-2 वेग आ जाते हैं तो दूसरे दिन मल प्रवृत्ति नहीं आते, तो उससे कोई नुकसान नहीं है। जी। तो गुरु जी, तो मात्रा बस्ती का जैसे मैं जनरली शाम का खाना खाने के बाद में उपयोग करता हूँ, तो क्या मुझे यह नहीं करना चाहिए, या केवल मॉर्निंग के खाने के बाद में ही करना चाहिए? नहीं, अक्सर तो बस्तियां दोनों समय दी जाती है, लेकिन पंचकर्म अधिक अच्छा है। लेकिन ऐसा होता है कि सुविधा के अनुसार आप दे सकते हो शाम को भी। लेकिन मेरा जो अनुभव है वो बता रहा हूँ आपको, कि शास्त्र में जो भोजन का जो बताया है कि भोजन के बाद ही देना चाहिए, तो जी गुरु। मेरे दृष्टिकोण से मैंने बहुत पेशेंट को ऐसे किया कि मैंने यवागु या दलिया या थोड़ा 1 प्लेट खिचड़ी यदि पेशेंट ने खा ली, उसके बाद भी आप दे सकते, 4 बजे दे सकते हो, 6 बजे भी दे सकते हो। जरूरी नहीं है कि 9 बजे खाना खाने के बाद देना है।
क्योंकि रात में यदि आप अनुवासन बस्ती देते हैं तो शीत के कारण, रात की शीतता के कारण अनुवासन बस्ती स्तंभित हो जाती है, तो ठीक तरह से काम नहीं करेगी। जी हाँ सर बस्ती आस्थापन और अनुवासन बस्ती अल्टरनेट डे पे देना है या एक ही दिन में, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद में, एक ही दिन में दोनों दे सकते हैं? वो तो कंडीशन है, कंडीशन है। अभी फॉर एग्जांपल आप मलास्तंभ की केस लेते हैं, कॉन्स्टिपेशन की केस लेते हैं, तो यदि कॉन्स्टिपेशन की केस है तो आप अनुवासन बस्ती दीजिएगा और कुछ 1 घंटे में ही नीरो बस्ती दे दीजिएगा, 2 घंटे में नीरो बस्ती दीजिएगा, या सुबह अनुवासन बस्ती दीजिएगा, शाम को नीरो बस्ती दे दीजिएगा। वो सुविधा आपके लिए भी है और पेशेंट के लिए भी। तो एक दिन में आप सुबह अनुवासन और रात को नीरो बस्ती दे सकते हैं, लेकिन ये क्रम बहुत अधिक दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि गुदम में पीड़ा होने लगती है एक ही दिन में 2 बार बस्ती नेत्र इंसर्ट करने में। तो 1 दिन या 2 दिन के लिए कॉन्स्टिपेशन के लिए ठीक है, लॉन्ग पीरियड के लिए ठीक नहीं है। समझ रहे हो? हेलो जी सर, जी सर, जी गुरु जी। समझ गए ना? जी सर, मतलब अल्टरनेट देना बेटर है। नहीं, मतलब पेशेंट आपके पास है तो अल्टरनेट देना बेटर है और अच्छे मात्रा में देना बेटर है। यदि आपको अनुवासन मात्रा देना है तो आप 240 ml मात्रा में दो, और दूसरे दिन यदि देना है तो 1 लीटर 960 ml मात्रा में नीरो बस्ती दो, यदि बल अच्छा है तो। ऑडिट के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मात्रा कम करना है तो आप सुबह 60 ml की मात्रा देना चाहते हो 60 ml की दो, और 500 ml का नीरो बस्ती देना चाहते हो रात को, तो ये भी सही जी है। सर, जी सर। ये कंडीशन है हर पेशेंट की, हर डॉक्टर। सर अगर समय हो तो थोड़ा सा मोड ऑफ एक्शन बताएंगे इसके डिस्क प्रोलेप्स में, जो बस्ती हम देंगे स्पॉन्डिलोसिस में या डिस्क प्रोलेप्स में, तो वो हाँ, प्रोलेप्स से ठीक होगा? प्रोलैप्स में, डिस्क प्रोलैप्स में बस्ती के साथ साथ में आपने देखा होगा, मैंने जो पीपीटी देखी होगी आपने, कि नीचे, उसके नीचे मैंने लिखा हुआ है सर्वांग तेलधारा, कई जगह लिखा है कलकापुट्टी रिस्वेद, कई जगह शैष्टिक पिंड स्वेद है ना, कई जगह कटिबस्ती लिखा हुआ है, कई जगह शिरोधारा लिखा है ना। सपोर्टिव नहीं है, मेन ऑफ ट्रीटमेंट है। तो संपूर्ण शरीर में यदि हमें डिस्क को यदि रिप्लेस करना है, मतलब जो हर्निएट हुई है, हर्निएशन को अभी ठीक करना है, तो शरीर को इतना ओलिएट करो ताकि ये शरीर के भीतर अस्थि धातु में चला जाए। और ये मैं समझता कि हर बस्ती, हर चिकित्सा जो हम देते हैं, तेलधारा हो, सर्वांग तेलधारा हो, शैष्टिक शैलीपिंडस हो, जो भी हो, जो हम देते हैं, वो देने के बाद एक धातु क्रॉस करने के लिए 24 आवर्स, मतलब 1 दिन लगता है। ऐसे ये अस्थि और मज्जा धातु ये 5वें और 6वें दिन होता है, तो कम से कम हमें 5 या 6 दिन या 7 दिन तक इंटरवर्टिब्रल डिस्क को पूरी ट्रीटमेंट देना है जो हमने कही। और उसके बाद उसका कार्य शुरू होता है। वहां पे जो भ्रंश है, क्योंकि हम इसको भ्रंश कहेंगे, तो भ्रंश किससे होता है? वायु से। ये वायु का चलागुण इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो अपने जगह से हटकर वो स्पाइनल कॉर्ड पर उसका दबाव आ चुका है। अभी इसको हमें वापस करना है। जब हम स्नेहन की चिकित्सा करते हैं, स्रोतो शुद्धि की चिकित्सा करती है, उस पर भी स्नेहन होता है, अनुवासन बस्ती में भी स्नेह होता है, नीरो बस्ती में भी स्नेहन होता है। तो जो भी हम करते हैं, ये स्नेह के कारण और बाकी चिकित्सा के कारण जो शरीर के सेलुलर दोष है, वो दोष के पहले तो स्तंभ कम हो जाता है, रुक्षता कम हो जाती है, और धीरे धीरे रुक्षता कम होने के बाद सेल्स अपनी रिकवरी खुद करता है। जब ये डिस्क को सप्लाई कैसे होता है?
डिस्क को डायरेक्ट ब्लड सप्लाई तो होता नहीं है, ये वर्टिब्रा से डिस्क को ब्लड सप्लाई होता है। ये जो सारा जो चिकित्सा है वो सारी चिकित्सा रक्त के जरिए, रस रक्त के जरिए वहां पे चली जाती है, और वहां का न्यूट्रिशन जो होता है रस रक्त के जरिए होता है। जो भी बस्तियां होती है, जो इसके कंटेंट्स होते हैं, और जो कंटेंट्स होते हैं वो कंटेंट वो सेलुलर लेवल के डैमेज को ठीक करते हैं, वहाँ के दोषों को विलयित करते हैं, वहाँ के दोषों को विच्छेदित करते हैं, और विच्छेदित करने के बाद रिकवरी स्टार्ट होती है। वायु का अनुलोमन हो जाता है, वायु वहाँ का कम हो जाता है, और डिस्क धीरे धीरे वो स्पाइनल कॉर्ड पर जो आई हुई डिस्क वो धीरे धीरे अपना पीछे होने लगती है, जो कि छोड़ देते हैं, वो जगह छोड़ी हुई जगह वो अपने रिप्लेस करते हैं। तो इस प्रकार हमें ये सारा कुछ करने के लिए, यदि हर्निएशन है तो पेशेंट को ओपीडी लेवल पर आप बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते हो, उसको एडमिट ही करना होता है। यदि ओपीडी लेवल पर ठीक करेंगे तो आपके डिस्क पर कंटिन्यूस आपके शरीर का प्रेशर आएगा, आपको कोई काम नहीं करना है। तो इसलिए हार्ड बेड पर पेशेंट को सुलाकर ये सारी चिकित्सा करते हैं, तो 15 डेज में हर्निएटेड डिस्क रिप्लेस होकर अपनी जगह चले जाती है, एशएलआर नॉर्मल हो जाते हैं, पाद उत्थापन नॉर्मल हो जाते हैं, पेशेंट अच्छे से चल पाता है, और उसके बाद 15 मिनट का फिर से कॉल होता है कि जो पेशेंट घर में रेस्ट करते हैं, तो उससे करीब करीब 70 to 80%, कभी कभी 90% एक माह में हर्निएटेड कॉम्प्रेशन का पेशेंट ठीक हो जाता है। ऐसे कोई पेशेंट है जो मैंने लिए हुए हैं जो पॉट स्पाइन का है, जिसमें पैरापेरेसिस हुआ है, जो माइलोमाइलेशिया का पेशेंट है, सर्वाइकल माइलोपैथी का पेशेंट है, क्वाड्रिपेरेसिस का पेशेंट है, ऐसे लोगों को हम 3 महीने 6 महीने का पीरियड लगता है। पहली सेटिंग होती है या 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद फिर और एक सेटिंग करते हैं। ऐसे 2-3 सेटिंग में ये पेशेंट ठीक हो जाता है, करीब करीब 75 to 80% ठीक हो जाता है। हेलो सर, जी सर बहुत अच्छा बता रहे हैं। समझ गए? हाँ, जी सर, ठीक। सर एक और क्वेश्चन। हाँ बोलिए। 8, 16, 32 कर्मकाल योग, ये ऐसे नंबर में बताइए, ऐसा इसके पीछे कोई हेतु? कर्मकाल योग बस्ती 8, 16 या 30 ऐसे बताइए, तो इसका कोई लॉजिक है? या अपने लॉजिक है हिसाब ना, से? देखो शास्त्र में लॉजिक के सिवा और कुछ नहीं होता। शास्त्र में यदि लिखते हैं तो हमारे महर्षि जो है वो साइंटिस्ट थे, हम महर्षि कहते हैं, तो महर्षि की जो उसका जो ये होता है वो साइंटिस्ट है। महर्षि चरक, महर्षि अग्निवेश, आत्रेय, ये सारे साइंटिस्ट थे। ये बिना वजह योग बस्ती, कर्म बस्ती, काल बस्ती बिना वजह तो ऐसे नहीं लिख पाएंगे ना। वमन और विरेचन में इस प्रकार की शुद्धि होती है जो वन टाइम शुद्धि होती है, समझ रहे हो। लेकिन बस्ती की शुद्धि होते समय हम जब पक्वाशय में जाते हैं तो पक्वाशय में जाने के बाद एक ही बस्ती में पूरे शरीर प्लावित नहीं हो पाता, पूरे शरीर की शुद्धि नहीं हो पाती। फिर दूसरे दिन देते हैं अनुवासन बस्ती, फिर नीरो बस्ती देते हैं, फिर अनुवासन बस्ती, क्योंकि ओलिएशन करना, स्नेहित करना, फिर शोधन करना, स्नेहित करना, फिर शोधन करना, इस तरह से वो संपूर्ण शरीर के सेलुलर लेवल पर जाते हैं, और सेलुलर लेवल पर जाकर वहां के जो दोष है वो वहां के दोष को विलेद करते हैं, विच्छेदित करते हैं। वह सेल्स को जो चिपके हुए दोष वो निकल कर फिर कोष्ठ में आ जाते हैं, और कोष्ठ से बस्ती के द्वारा निकल जाते हैं। ये प्रोसेस एक दिन में नहीं होती है, कभी कभी योग बस्ती देने से 8 दिन में भी नहीं होती है, कभी कभी 15 दिन या 16 बार देने से भी नहीं होती है, तो 30 बस्ती तक कभी कभी देनी होती है पूरी शुद्धि होने के लिए या पूरा व्याधि ठीक होने के लिए। समझ रहे हो? हेलो जी सर। सर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में एक पेशेंट को सिस्ट डायग्नोस हुआ है,
तो उसमें हम किस तरह की बस्ती को अप्लाई कर सकते हैं? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में सिस्ट का हुई है। सिस्ट C4 C5 के बीच में है सर। अच्छा, सिस्ट इंट्रास्पाइनल है कि एक्स्ट्रा स्पाइनल? इंट्रास्पाइनल है सर। तो मज्जागत इंट्रास्पाइनल यदि है, मज्जागत है, तो जी। पेशेंट तो चल नहीं पाएगा। सर पेशेंट वो तो है बेडलाइन होना चाहिए, हाँ, नहीं सर बेडलाइन वो होना चाहिए। पूरा मूवमेंट बिल्कुल नहीं, बोथ हैंड एंड नेक, बाकी मूवमेंट तो है लेकिन बेड पर ही है। और इसके बाद ट्रीटमेंट भी दिया है तो मूवमेंट आ गया है, और आने के बाद उसका साइज भी छोटा हो गया है। लेकिन बस्ती में मैं अनुवासन, निरूह और ये मात्रा बस्ती यही चलाती रही हूँ, और नहीं, मांस पाचक, अस्थि नहीं, मज्जा उसको पाचक ये सब चल रही। दशमूल मज्जा बस्ती दो, अच्छा सर। दशमूल मज्जा बस्ती दो, यापन बस्ती दो, जिससे साथ में मेडिसिन भी चलाई हूँ। मांसरस हो। ये जो जी अस्थियों के बीच भीतर जो मज्जा होती है, ये जी मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड के सदृश ही होती है, जी उसमें उसका बहुत अच्छा असर होता है। और ये जो मैंने सिंपल जो बस्ती बताई है, जी मस्तिष्क रस बस्ती, ये अच्छा जी। काम, और क्योंकि साथ में वो इतना आसान नहीं है। दशमूलादि मज्जा बस्ती, उसके पूरे हड्डियां, बकरी के एक ही साथ में पूरी हड्डियां लाने की आवश्यकता होती है। उसको बॉईल, एक बार बॉईल करें, उसकी स्किन निकाले, फिर उसको बॉईल करें, फिर उसको तोड़े, फिर उसके से बच्चा निकाले। तो एक समय में पूरे बकरे के पूरे हड्डियों में कितना निकलता है? तो करीब करीब 60 ग्राम मज्जा निकलती है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जी 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 तो जी। इसका खर्चा भी बहुत ज्यादा आता है, लेकिन हाँ सर, कहीं वो के पेशेंट में मैं अफोर्ड नहीं करते, पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पाते। अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप नहीं, मस्तिष्क रस बस्ती दीजिए, मस्तिष्क रस बस्ती। रस बस्ती दिन। और सर ये काचनार वगैरह ये सब साथ में चलाते हुए अस्थि वो तो मज्जा चलाना है, वो पाचक, तो हाँ, 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 ये सारी वो तो चीजें भ्रोत्वा चिंतामणि दीजिए, रसरास रस दीजिए, योगेंद्र रस दीजिए। जैसे आप तो कांचनार गुड़ दे ही रहे हो, दे रहे उसके हैं। बाद हाँ एकांग वीर रस है, वो दीजिएगा। जी बहुत औषधि है, औषधि तो बहुत है। हाँ जी हाँ जी सर, ये काफी इम्प्रूवमेंट आ गया सर उसमें, बहुत बहुत ज्यादा। हो सकता है कि अभी वो न्यूट्रल भी आ जाए। तो वस्ती चिकित्सा तो बहुत ही मिरेकल है सर आज के समय में। हाँ, और थैंक आपका तो बहुत ही ज्यादा। बृहद् चिंतामणि, यू। बृहत्तवात् चिंतामणि। भ्रोत्वा सर चिंतामणि, हाँ। सर क्या करना है? क्रोनिक पक्षाघात के केसेस में आपका कैसा अनुभव है सर बस्ती से? क्रॉनिक पक्षाघात के लिए अक्सर बस्तियों का ही प्रयोग होता है। जनरली जब पेशेंट का बल अच्छा हो और पेशेंट यदि थोड़ा चलने लायक हो या थोड़ा अच्छा हो, तो उसके लिए विरेचन तो सबसे अच्छा था, विरेचन देते हम लोग। लेकिन क्रॉनिक होने के बाद या फिर हस्तपाद शैथिल्य ग्रेड 4 है, तो ऐसे समय बस्ती ही दे सकते हैं। तो उसमें आप शोधन बस्ती दे सकते हो शुरू में, अनुवासन बस्ती साथ में दे सकते हो यदि श्रोतरोध नहीं है तो, और साथ में यदि पक्षाघात है तो मस्तिष्क रस बस्ती दीजिएगा, बहुत अच्छा काम करता है। और ब्लैडर के लिए आप उत्तर बस्ती दे सकते हो, त्रिपला क्वाथ या अल्टरनेट सहचर बस्ती का 2 या 3 बस्ती, ये भी दे सकते हो। और उसके साथ में सर्वांग तेल धारा है, शिरोधारा है, नश्य है, पिंड स्वेद है, षष्टिकशाली पिंड स्वेद है, कलकपोटली स्वेद है, बहुत सारी। एक ही रुकने पर एक ही चिकित्सा करने से लाभ नहीं होता है। तो पंचकर्मा ये ऐसी चिकित्सा है कि पूरी तरह से रुग्ण का परीक्षण कर जो हमें सही लगे वो स्नेहन के रूप में, स्वेदन के रूप में, रोहन के रूप में, शमन के रूप में, शोधन के रूप में, मतलब जो षड चिकित्सा बताई गई है, लंघन आदि, ये सारी चिकित्सा हमें पंचकर्म के दृष्टिकोण से हमें करनी पड़ती है। समझ गए?
चलो जी सर, जी सर, जी जी सर। बहुत बहुत समझने के बाद धन्यवाद। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए जी, जी। हाँ सर, हाँ सर, जी सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम एक अच्छा इंटरेक्शन सेशन हो गया है, काफी डाउट्स क्लियर हो गए हैं और हमने नॉलेज भी शेयर किया है। इसी के साथ मैं आज का सेशन कंक्लूड करना चाहती हूँ। सो ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी आई वुड लाइक टू थैंक Gawkar sir for sharing his extensive practical knowledge and experience with all of us today. I would like to extend my sincere gratitude to all our mentors and especially our director, Dr. Vandana Siroha ma'am, for being the guiding force for all events of RAB. Most importantly, I would like to express my heartfelt thanks to all the gurus and shishyas and scholars who have joined today and made this webinar a successful one by their active participation and interaction. Last but not the least, I would like to thank all the members of the RAV team who have been working behind the stage to make this event successful. Our next session will be on 18th June 2024 by Upendra Dikshit sir. उनका सेशन जून में था, वो हमने रीशेड्यूल किया था, तो वो नेक्स्ट वीक रहेगा. He will be talking on the Ayurvedic perspective of cancer. So hope to see you next Thursday. तब तक आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद. थैंक यू मैडम, आपको और आप सभी RAV टीम को धन्यवाद.